webinar series. I am Srishti and I'll be your host for today's engaging session. So, thank you all for joining us today. I hope you all are doing well. As a few more participants are joining us, we'll wait for another 2 to 3 minutes before we officially begin. In the meantime, thank you all for taking your time to be with us today. So, just for a quick note, approximately 200 plus professionals have joined us live from different industries like Piramil Group, Amazon, Flipkart, Volvo. We have from Dayanand Sagar University, we have participants from various industries. We have Vardhaman Textiles, we have AU Small Finances, so we have so many participants joining us from various industries from across cities like Jaipur, Mumbai, Delhi, Indore, Pune, etc. So we are truly delighted to have such a great audience joining us today in this webinar. So once again, a very warm welcome to each one of you and thank you for being a part of HR Samvad webinar series powered by Time Labs. So before starting, let me give you a quick introduction about what HR Samvad is. So HR Samvad, powered by Time Labs, is a curated HR leadership platform who sees HR just is more than operation. It's about strategy, it's about innovation, it's about transformation, it's about leadership, it's about workplace culture. And in HR Samvad, we discuss on topics like AI in HR, new labor law codes, and emerging trends to make the organization stay future ready. And today's topic is one that impacts every organization, every manager, and every employee, and that is people management and HR analytics. So, before beginning, let me share my screen with you. So, is my screen visible to everyone? Okay. So before beginning, let me ask one question to the audience. What is the first word that comes to your mind when you hear the word people management? Please drop your answers in the chat section. Okay, someone is saying optimizing human capital, someone is saying people, someone is saying communication. Okay. Please drop your answers. HR operations. Nice. Understanding human psychology, sharing of the information, managing the talent life cycle. Okay. Okay, so we have many responses, and it's really great to see so many enthusiastic participants joining us for this webinar. So, just let me share you some statistics about people management. So, these are the statistics from SHRM. So, the statistics are people-related costs account for nearly 30 to 40% of an organization's total operating expenses. And according to SHRM, replacing just one employee can cost anywhere between 50 to 200% of that employee's annual salary. So now just think about that for a moment. Organizations invest so much in hiring, retaining, developing their employees, yet they still struggle with some of the most critical business challenges. The challenges are like number one, why are our top employees leaving? Number second could be like, why does productivity fluctuates? Like one team is like one team's productivity is growing and another team's productivity is not going that much. So there are some challenges that occurs even if the organization is investing so highly in their people. So these are the questions that we are going to
address today in this session. So before getting started, let me give you a quick overview of what you can expect from today's session. So, in today's webinar, we are going to address four questions. Number one, what happened? Number two, why did it happen? Number three, what could be done differently? And number four, how HR analytics can help to solve these challenges. And also, what we are going to do to understand all these challenges coming in people management clearly, we are going to take a case from a leading organization, and through that we are going to understand about how can we solve these challenges through HR analytics. One thing more, that we are going to answer all the questions through HR analytical dashboard. We are going to address all the solutions through a dashboard from all the challenges. And that's not all. At the end of this session, we are going to demonstrate a live demo of HR Analytics prediction model where you will get to know that how predictive analysis can support in today's smarter workforce decision. Also, after this webinar, you're going to get 7 prompts for HR Analytics, and also we will end the session with an interactive quiz where the winner of that quiz will get a chance to win 7-day free trial of HR Analytics module by Time Lapse. So, with that, let's begin our today's session. So, for today's session, we have with us an industry expert. We have with us Mr. Rajat Mendireta, HR head at GA Infra, with extensive experience of 20 years in people management. We have with us Rajat sir. So we are truly delighted to have you with us, sir, today. Thank you, Shrishti. Thank you so much, sir. So, sir, before beginning, I want to build a quick foundation for our audience. As many of us has already heard about the term people management, but could you please explain from your viewpoint what is people management? So, hello everyone, and the topic people management is very much important in today's era. And I will go back to the poll. थोड़ी देर पहले अभी आपने सृष्टि पोल कराया था तो उसमें काफी सारे Yeah. लोगों ने कम्युनिकेशन एंड appraisals and payroll and leaves and hiring, all that terms was coming up, and all those are correct in terms of people management. So all answers in the poll was correct, and that relates to our people management thing. So it is synonymously used in place of HRM as well in the industry. So it is all about managing the entire life cycle of the employee from hiring to retiring, and basically it is a relationship of an employee starting from the recruitment or talent acquisition, and it is through his journey in the organization, and after exit becoming the alumni of the organization. So this is how people management works: attracting, building capacity, engaging the employee, rewarding him fairly, retaining and growing them, and finally employees gets exit. So this is all about people management. But in today's era, the business is directly related to the people who are working. I mean, employee productivity and business outcomes. Now, these two things are attached directly. Now, there is no indirect connection between these two. So, if the people management or human resource management is done correctly, then what will happen? Productivity will increase, engagement will increase, pipelines of your potential hiring will also increase, and the company will scale. But if not focused, then initially you won't feel, but it will lead to attrition, vacant positions, and high costs. So this people management thing is most important in today's era, and it is not only HR's responsibility to build this thing. This is a responsibility of HR. HR can build frameworks, but managers has to practice them, and business has to support these decisions. So this is all about people management in today's era.
Yes, Srishti. ओके सो सर जैसा आपने बताया कि जो पीपल मैनेजमेंट है इट्स नॉट ओनली द जॉब ऑफ एन एचआर, वो Yes. सारी चाहे वो टीम लीड हो इवन इफ इट इज अ मैनेजर सबको इफेक्ट करता है. सो Right. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द एम्प्लॉय जर्नी. सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि हाउ डज पीपल मैनेजमेंट अफेक्ट द एम्प्लॉयर्स एंटायर लाइफ साइकिल. See, Srishti, what happens, I mean, HR terms has a lot of functions. HR में बहुत सारे functions होते हैं और जो सबसे main function है जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज वैसे तो मैन पावर प्लानिंग से स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वंस द कंपनी स्टार्ट्स द बिजनेस एंड दे प्लान फॉर मैन पावर्स कि हमें अब रिक्रूटमेंट करना है देन थिंग्स स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे एचआर का रोल आ जाता है इनिशियली कि वी हैव टू सोर्स द रिज्यूम्स सोर्स द कैंडिडेट्स स्क्रीन देम conducting the interviews and negotiating and then offering them and then finally selecting and onboarding. But this comes with a lot of challenges. I mean, challenges आ जाते हैं जब वॉल्यूम ऑफ सीवीज आपके पास होते हैं आपके पास बहुत सारे फ्लडेड हो गए हैं सीवीज एन नंबर ऑफ सीवीज यू आर गेटिंग एंड यू आर नॉट एबल टू स्क्रीन देम ड्रॉप ऑफ्स हो रहे हैं रिजेक्शंस हो रहे हैं मतलब आप लोगों को लूज करना स्टार्ट कर देते हो यू स्टार्ट लूजिंग गुड पीपल you are not able to hire those good people so recruitment and onboarding is a first step in the organization and this comes with the challenges also if we talk about learning and training and learning and development so when you hire people in the organization then you have to bridge the gap between the what you require, what the business requires, what kind of skills are required by the business, and then you plan the trainings accordingly. But the major challenge with the this learning and development part is everyone gets the same training majority of times. So organizations try to cover this bridge by providing various trainings, but again that cost gets increased. So majority of organizations are चैलेंज फेसिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंज कि उनको एक ही तरह का सभी तरह का ट्रेनिंग मिल जाता है तो अगेन दिस इज ऑन बोर्डिंग दिस लर्निंग एंड डेवलपमेंट कम्स विद दिस चैलेंज when we talk about performance appraisal, I mean, that is again employee जब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको अच्छी लर्निंग एंड डेवलपमेंट मिल जाती है उसको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के एंड से तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अब उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी अच्छा हो सो व्हाट परफॉर्मेंस अप्रेजल देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स you need to define your goals you need to check your feedback you need to check with your organization mechanism आप कौन से mechanism के ऊपर एम्प्लॉय को मेजर करना चाह रहे हैं देन चैलेंजेस जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ज्यादातर मैनेजर्स जो हैं उनका अपना अपना एक मेथड होता है कि हम एम्प्लॉय को कैसे जज कर रहे हैं आई मीन सबका अपना एक मेजरमेंट टूल है खुद का कि कोई स्ट्रिक्ट है कोई लीनियंट है कोई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर Yeah. है कोई वीक परफॉर्मर है किसी में पोटेंशियल है सो आई मीन दीज थिंग्स आर अगेन चैलेंजेस फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल टीम्स अब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इट कम्स अबाउट एंगेजिंग तो उनको एंगेज करके Engagement. रख यस एंगेजमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट आई मीन उनको वर्क के साथ में कनेक्शन बना के रखना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज का Yeah. व्हाट हैपेंस विद द आई मीन जैसे जैसे टाइम जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉयज स्टार्टेड फीलिंग दैट यार हम तो मोनोटोनस वर्क कर रहे हैं यार हम तो सेम टाइप का काम कर रहे हैं देयर इज नो अदर एक्टिविटी सो दिस इज अगेन I mean, it may lead to attrition, but if taken care properly, then employee may uh, take interest in the organization and continue. But again, there are challenges, scatteredness is there, and nobody is trying to figure it out what they want exactly कि उनको engage करने वो क्या चाहते हैं वो क्या चीज चाह रहे हैं जिससे वो engage रहे हैं organization में ये चीज figure out करना again these are the challenges associated with this and if we come Yes. to compensation management, the next step. So this step is basically what everyone wants a fair reason that कि मेरे पास में एक अच्छा reward हो basically जो what I am doing to for the organization तो I need a good reward. So
रेटिंग्स मिलती हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है और रेटिंग के बेसिस पे सैलरी हाइक्स मिलते हैं, बोनस मिलता है, प्रमोशन मिलता है. सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन. बट अगेन द चैलेंजेस फॉर द एचआर टीम, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती हैं एम्प्लॉयज की. तो सैलरी हाइक होता है तो वो उनको बैठता नहीं है कई बार, एंड बैठता समटाइम्स नहीं है। जिन जो डिजर्व नहीं करते उनको भी उतना सैलरी हाइक मिल जाता है. सो ऑल दीज ये जो डॉट्स हैं, ये जो गैप्स हैं, ये दीज ऑल आर challenges. और अगर बैड कॉम्पनसेशन होगा तो फिर अगेन इट विल लीड टू द, आई मीन, एट्रिशन अगेन. दैट इज अ चैलेंज, एंड अ पे कंप्रेशन उसको लीड करता है डेफिनेटली. और जब हम लास्ट बात करते हैं, अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी में, तो आता है अपना एग्जिट. सो एग्जिट इज बेसिकली अगेन कम्स विद exit interviews, ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट. बट अगर इसको, ये चैलेंज ये है कि अगर डिसीजन किसी ने ले लिया है कि मुझे जाना ही है ऑर्गेनाइजेशन से, सो व्हाई नॉट टू डील विद इन अ बेटर वे. बट वो ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इन सब चैलेंजेस के साथ में फेस करती हैं प्रॉब्लम्स. और वो इस जो ये जो प्रोसेस है, इसको कहीं ना कहीं, हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो चैलेंज फेस करती हैं इस ऑल चैलेंज 6 फेस स्टेप्स करती के है। अंदर. अब द मेन थिंग इज, ये जो आपने जो स्क्रीन पे अपने ये 6 स्टेप्स आ रहे हैं, सो बेसिकली दिस इज नॉट अ सीक्वेंस. आई जी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, दिस इज अ बेसिकली, दिस इज अ मैप. तो प्रॉब्लम किसी भी पार्ट पे अराइज हो सकती है. ऐसा नहीं है कि ये केवल ऐसे स्टेप पे जाएंगे तो ही अराइज होगी. इट कैन बी अराइज एट एनी स्टेप. सो every step, every this function of human resource management has a challenge, and that challenge needs to be addressed properly. यस सर, दैट्स सो ट्रू सर, कि जो चैलेंजेस होते हैं वो हर एक स्टेप में, हर एक स्टेज में आते हैं एम्प्लॉइज के. Correct. सो I want to ask one question to the audience. Like, one question is going to pop up in your screens. Like, what is the biggest people management challenge in your organization right now? So, just kindly share your responses in the chat section. What is the biggest people management challenge in your organization right now? Because this is the most important topic we are going to like address today. Okay, so I have responses like, okay, so majorly people are saying, Mr. Rajat, that Yeah. they are facing challenges in recruitment. Okay, Yes. so to understand it clearly about the challenges, what we'll do today, we'll take one case of a real organization. So it is from a leading company, but due to confidentiality, we are not going to take the actual name. But for this, for the purpose of this webinar, for the purpose of this session, let's take the name as Nexora Workforce Solutions Private Limited. So I'm Yeah. going to tell you the challenge and then we'll address the solutions here. Okay. So this is a company विच इज लाइक रैपिडली ग्रोइंग. ये जो कंपनी थी रैपिडली ग्रो कर रही थी, एक्सपेंड कर रही थी मल्टीपल लोकेशंस पे. सब इनको नीड थी थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉइज की, क्योंकि लोकेशंस पे, मल्टीपल लोकेशंस पे एक्सपेंड कर रही थी. तो हुआ क्या, यहाँ पे जो हायरिंग नीड्स थी दैट गॉट इंक्रीज. एंड व्हाट एक्चुअली डिड, जो उसने इफेक्ट किया वो थी वर्क फोर्स कॉम्प्लेक्सिटी. क्योंकि जब कोई बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो चैलेंजेस भी उतनी ही तेजी से ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे क्या, वो वर्कफोर्स जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी बढ़ गई, मल्टीपल एचआर चैलेंजेस भी यहाँ पे आ गए. और जो लीडरशिप को लगता था कि जो चैलेंज है वो आइसोलेटेड है, लाइक वो सब चीजों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, उनको लगता था कि जो रिक्रूटमेंट है तो वो रिक्रूटर्स को इफेक्ट कर रहा है, एलएनडी है तो एलएनडी के डिपार्टमेंट को इफेक्ट कर रहा है. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था. ऑल द challenges were like interconnected to each one of them, और जो challenges थे वो हर एक पार्ट को अफेक्ट कर रहे थे. सो Correct. एज जो हमारा जो पोल आया, वहां पे सबसे पहला आया था, जो हाईएस्ट हमारा पोल भी गया, जो आंसर्स आए वो थे रिक्रूटमेंट पे. सो लेट्स टेक द फर्स्ट चैलेंज इज रिक्रूटमेंट. So in Nexora, what happened? The company wanted to hire 100 new employees or candidates.
बट हुआ क्या, यहाँ पे एप्लीकेशंस आ गई 7,500 एंड दिस लेड टू स्क्रीनिंग बॉटलनेक इश्यूज, इट लेड टू हायरिंग डिलेज, इट लेड टू जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो जोन आउट हो जा रहे थे, एंड इट लेड टू क्रिटिकल रोल्स रिमेन वेकेंट. So, Mr. Rajat, what do you think was the major problem in this case? सी बहुत ऐसा देखने को पेपर्स में मिलता है, अगर कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उनकी हायरिंग नीड्स बढ़ रही हैं, तो इट्स अ वेरी गुड साइन, नंबर वन. नंबर टू, when organization is going to grow, when they have when they are expanding, or now they are going to have offices in multiple locations पे जब वो अपने offices करने वाले हैं, तो उनको मैन पावर डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहेगा. और जितनी तेजी से Yeah. कंपनी ग्रो करती है, उससे ज्यादा तेजी से उसके चैलेंजेस ग्रो करते हैं. सो अभी इस केस स्टडी सिनेरियो के अंदर सृष्टि 7,500 एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 100 हायर्स, या For 100 100 hires here hires. means it's yes, 100 positions approximately. And you can see the ratio, I mean 75 applications for one position. So it's For a, I one mean for, position. अगर मैं CHRO के एंगल से देखूं, तो हेड ऑफ HR, CHRO मैनेजमेंट के एंगल से देखूं, तो भाई वी आर वेरी प्राउड. हमारी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बहुत शानदार है, तो इतने लोग हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं. बट अगर कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम स्मॉल है, और अगर मैं एक रिक्रूटर के एंगल से देखूं, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप 7,500 सीवीज की स्क्रीनिंग करने के लिए स्क्रीन करोगे. आप एक एक से इंटरैक्ट तो करना ही पड़ेगा आपको. आप इंटरैक्शन कम से कम एक कैंडिडेट का 5 मिनट के आसपास भी अगर आप लेते हैं, तो 7,500 इंटू 5 मिनट्स, यू कैन डू द मैथ. अब आप लगा लीजिए कितना टाइम जाने वाला है. तो क्या इस टाइम पीरियड में वो कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, विल दे स्टे, या वो कहीं और चले जाएंगे? So it's a very big question. It's a challenge basically from a recruitment point of team. So अब जो दूसरा चैलेंज यहाँ पे खड़ा होता है, वो ये खड़ा होता है कि आपने चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए एक रिक्रूटमेंट टीम रखी, और वो बॉटलनेक्स पे काम कर रही है कि हम कैसे ना कैसे करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स को हम यहाँ शॉर्टलिस्ट करें, और हम उनको क्लोज करें, पोजीशन वेकेंट पोजीशंस को जल्दी से जल्दी क्लोज करें. अब बॉटलनेक क्रिएट हुआ है यहाँ पे, उसका रीजन हो जाएगा डिले, डिसीजन डिले, टेक्निकल टीम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, कभी बजट्स का इशू आएगा, कभी सोर्सिंग्स का इशू आएगा. सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज अगेन लीड टू द बॉटलनेक, और वो बॉटलनेक होगा डिले का. रोल्स वैकेंट रह जाएंगे. क्रिटिकल रोल्स वैकेंट रहना कंपनी के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग है. अब उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको डिले हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, आपको अपने जो इंपॉर्टेंट, आपके जो रादर आई वुड से कि जो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं, उनमें रोल बांटना पड़ेगा, उनको बर्नआउट होगा, और फिर वो कहीं ना कहीं एट्रिशन की तरफ लीड करेगा. तो दीज आर द चैलेंजेस जो कि ये कंपनी फेस करेगी, जो हम देख पा रहे हैं इस केस स्टडी के अंदर. आप इसको और ज्यादा फोकस करेंगे, जब हम इसको जब डैशबोर्ड पे जाएंगे, तब आप इसको देखेंगे कि और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी. कैन वी हैव द डैशबोर्ड? Yes, sir. So, sir, is my screen visible to you? Yes, it is. Okay. So you can see here clearly this data which is there on the dashboard. Executive recruitment overview is there. So जो हम अभी नेक्सोरा की बात कर रहे हैं, सो दिस इज अ सिमिलर एग्जांपल. आप इसको ही मान के चलिएगा. इनके पास लेट्स से इंस्टेड ऑफ 7,500 500 एप्लीकेशंस आए हैं, जिसमें से टोटल हायरिंग हुई है 189. एंड जस्ट अ मोमेंट, Yes, sir. वेकेंट पोजीशन अभी तक 8 पोजीशंस हैं. सो इट, जब ये रिपोर्ट, जब ये डैशबोर्ड जो अभी मेरे स्क्रीन के सामने है, एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू वाला, जब ये टॉप मैनेजमेंट के पास में या CHRO के पास में जाएगा, तो उनको फिगर्स तो प्रॉमिसिंग लगेंगे कि ये ठीक है, 37.8% लोगों को हायरिंग हो चुकी है. बट स्टिल देर इज अ 62.2% लोग हैं जिनकी हायरिंग नहीं है, और 8 ऐसी पोजीशन है जिनमें अभी तक एक भी एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई है. तो ये, they will say कि यार you need to take up this and you have to close this as soon as possible.
बट यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, हमारे चैलेंजेस अभी भी क्लोज नहीं होते हैं। तो जो Yeah. रिक्रूटमेंट फनल है, देखिए आप रिक्रूटमेंट का जो फनल है यहाँ पे, कैन यू क्लिक ऑन द सेक्शन 2 ऑफ रिक्रूटमेंट फनल प्लीज। Yes, sir. तो आप यहाँ देखिए आपके पास 500 एप्लीकेशंस आई। तो रिक्रूटमेंट टीम ने ऑल 500 एप्लीकेशंस को स्क्रीन किया। आई मीन यहाँ पे भी एक चैलेंज है कि ऐसा कोई एप्लीकेंट नहीं था जो कि रह गया हो। तो ये भी एक टेक केयर करने की चीज है कि क्या एब्सोल्युटली 500 में से 500 लोग स्क्रीन हो गए। सो दिस इज अगेन अ पॉइंटर वेयर टीम्स नीड्स टू चेक इट आउट, है ना। ऐसा होता है यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में। जब आपने स्क्रीनिंग कर ली और स्क्रीनिंग करने के बाद में आपने 408 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया, फिर फनल में उनका इंटरव्यू हुआ 339 का एंड ऑफर हुआ 279 का। ऑफर एक्सेप्ट कितने लोगों ने किया? 237 ने। अब ये जो गैप है 279 और 237 का, कि आपने ऑफर किया बट उन्होंने एक्सेप्ट 237 नहीं किया, तो अगेन द नंबर इज गोइंग डाउन। ठीक है, टोटल से 47.4% पे हम आ गए हैं यहाँ पे, इस फनल के अंदर। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि आप यू कैन सी हेयर कि 237 जो लोग हैं जिन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, उसमें से ज्वाइन केवल 189 नहीं किया है। तो आपका जो लॉस हो रहा है यहाँ पे, 20.3% लोगों ने आपको ज्वाइन ही नहीं किया ऑफर लेटर लेने के बाद में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। और ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन? मतलब 48 लोगों ने आपको ज्वाइन ही नहीं किया आउट। तो वो रीजन है आपका जो ऑफर लेटर का जो गैप है, ऑफर टू ज्वाइनिंग का जो गैप है 19 डेज का आ रहा है। उस बीच में क्या हो रहा है, जो कैंडिडेट है जो आपके यहाँ इंटरव्यू दे रहा है वो कहीं और भी इंटरव्यू दे रहा है, उसके पास और भी ऑफर्स है। तो आपको वो जो टाइम है, गैप है, वो जो डिसीजन मेकिंग है, वो जो मैनेजमेंट को, टीम्स को, टेक्निकल टीम्स को जो डिसीजन लेना है कैंडिडेट की हायरिंग के ऊपर, वो बहुत क्विक लेना पड़ेगा। इस एनालिटिक्स से हमें ये पता चलता है, इस रिक्रूटमेंट एनालिटिक्स से हम ये पता लगा सकते हैं बहुत इजीली कि हमें कहाँ पे वर्कआउट करना है, हमें कहाँ वर्क करना है, कहाँ बॉटलनेक आया निकल के। हमें ये निकल के आया कि हमारा जो ऑफर टू ज्वाइनिंग का Budget. गैप है वो 19 डेज का आ रहा है, तो हमें इसको कवर करना है। तो हाउ दीज थिंग्स आर हेल्पफुल, यू आर नाउ गेटिंग द थिंग्स। और ये सब कैसे हो रहा है ये अपन आगे बात करेंगे डेफिनेटली, हाउ दिस फ्लो इज वर्किंग, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। सो अगर मैं स्क्रीन नंबर 3 पे आऊं, सोर्स की इफेक्टिवनेस पे अगर मैं देखना चाहूं, तो हम जब आप ये देखेंगे कि जब रिज्यूम रिक्रूटमेंट क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है एचआर का। तो उसमें सबसे बड़ा जो इशू स्टार्ट होता है जब वैकेंसीज ओपन होती हैं, पोजीशन ओपन होती है, पोजीशन वेकेंट होती है। तो व्हाट हैपेंस कि सबसे पहले ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें सोर्सिंग कहाँ से करनी है, वेयर शुड वी सोर्स फ्रॉम, हमें सीवी लेने कहाँ से हैं। तो आप इस केस में देख सकते हैं नेक्सोरा वाले के अंदर की जो एजेंसी है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आ रही है। आपकी कॉस्ट आती है, हर हर सोर्स पे कॉस्ट आती है, चाहे आप कंपनी की वेबसाइट पे पोस्टिंग करेंगे, चाहे आप लिंक्डइन यूज करेंगे, चाहे आप कोई जॉब पोर्टल्स यूज करेंगे। एग्जांपल आप इंडीड है, नौकरी है, बहुत तरह के पोर्टल्स हैं मार्केट में। आप कोई सा भी पोर्टल लेंगे देयर विल बी अ कॉस्ट टू एवरीथिंग। आप कैंपस प्लेसमेंट भी करेंगे देन ऑल्सो देयर इज अ कॉस्ट। तो एम्प्लॉय का रेफरल है, ऑल दीज थिंग्स हैव अ कॉस्ट। और इसमें आप ये देखिएगा कि कौन सा जो मेथड है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव, यू कैन फिगर इट आउट विद दिस रिक्रूटमेंट एनालिटिक्स, जो कि यूजुअली डैशबोर्ड्स होते ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस के पास में। तो वो इस चीज को फिगर आउट कैसे करेंगे, इन चैलेंजेस को कम आउट कैसे करेंगे कि यार मेरी कॉस्ट कहाँ ज्यादा जा रही है। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा कहाँ जा रही है। तो अब इस केस में आप देखोगे कि जो हम थर्ड पार्टी एजेंसी है जिसको हम हायर कर रहे हैं, वो 29,825 रुपीज पर हायर कॉस्ट है उसकी। और आप कंपनी वेबसाइट से ज्यादा इफेक्टिवली हायर कर पा रहे हो, आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 45.9 है कंपनी वेबसाइट से। मतलब जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है नेक्सोरा वो हायरिंग कर रही है, उसकी वेबसाइट से जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन एजेंसी। और उनका कन्वर्जन रेट बेटर है और कॉस्ट भी कम है। तो यहाँ आप एक डिसीजन ले सकते हो कि भाई हमें कहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। हियर कम्स द बैलेंसिंग पार्ट। सो दीज ऑल आर इनसाइट्स फॉर मैनेज, जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके लिए एक इनसाइट्स है यहाँ पे कि यार हमें किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, हमें किस तरह का मेथड अडॉप्ट करना है हायरिंग पैटर्न्स का, सोर्सिंग का। सो दिस इज ऑल अबाउट सोर्सिंग। अब जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि अगर हम रिक्रूटमेंट कॉस्ट और सोर्सिंग, कैन यू क्लिक ऑन वंस रिक्रूटमेंट कॉस्ट ऑल्सो? Recruitment cost. यस, सेक्शन नंबर 8। यस।
So this cost analysis is very important from the company point of view, from the management point of view. वहां पे हमने कन्वर्जन रेट भी देखा कि कौन से सोर्सेस से सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है और कहाँ बैलेंसिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट का बैलेंसिंग भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एजेंसी हर बारी अगर कॉस्ट पर हायर उसका ज्यादा आ रहा है तो वो हमें इफेक्टिव रोल नहीं दे सकती है। हमें इफेक्टिव रोल के लोग दे सकती है एजेंसी, बट वी नीड टू फिगर इट आउट कि एजेंसी किस तरह के रोल्स देने में केपेबल है। देन वी कैन गो विद द एजेंसी। इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो हर कंपनी का एक अपना अलग सिनेरियो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी का कंपनी वेबसाइट से सोर्सिंग अच्छी हो रही हो सकता है किसी की लिंक्डइन से अच्छी हो रही हो सकता है किसी की नौकरी से अच्छी हो रही हो सकता है किसी की एजेंसी के थ्रू बेटर रिजल्ट्स आ रहे हो हायरिंग में। सो मेन गैप इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड गेट द मोस्ट इफेक्टिव कैंडिडेट्स। ओके Yes, sir. सृष्टि, या कैन यू क्लिक ऑन द एग्जीक्यूटिव समरी पार्ट, इनसाइट्स एग्जीक्यूटिव समरी? Yep. Yeah. So, I mean, these dashboards, these recruitment analytics provide you with a vision where you can see what these are saying to you. They have analyzed internally and they are saying that आपके offers और joining stage में क्या funnel leak है, what are the recommended action. Just for example, where offer accepted है तो introduce a structure pre-boarding engagement touch point plan to shrink the 19 days gap, keeping accepted candidates engaged until day 1. तो आपको ये insights भी देते हैं डैशबोर्ड्स, जिससे आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें ये चीजें मिसिंग है, where there are no dashboards and their decisions are lagging. So अगर हम एग्जांपल लेते हैं एग्जीक्यूटिव समरी का, प्लीज एग्जीक्यूटिव समरी पे आएंगे सेक्शन 12 पे। यस। सो this there is a summarized way what you what has I mean happened and what are the things। टॉप 5 रिक्रूटमेंट इस पूरे डेटा फ्लो से, इस पूरे रिक्रूटमेंट के फनल से, इस ये सारी एप्लीकेशन, इनकी स्क्रीनिंग और इनसे क्या फिगर आउट हुआ। तो कहाँ पे रिस्क है रिक्रूटमेंट पे, क्या एचआर को एक्शंस लेने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रिक्रूटमेंट की फाइंडिंग्स हैं। सो अगर ये डेटा किसी भी मैनेजमेंट टीम के पास होगा तो वो इफेक्टिवली वर्कआउट करके और इन चैलेंजेस को डील करके अपना जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो और बेटर बना सकते हैं। Yeah. So, Mr. Rajat, as per our discussion, मैं यहाँ से ये ले सकती हूँ because there are companies who are still not using their data जहाँ से वो अपने insights को निकाल सकें. But these dashboards are the one like जिसके राइट। थ्रू हम insights भी निकाल सकते हैं. And I think so जो challenge यहाँ पे आया अभी तक Nexora में, it is just because क्योंकि उन्होंने अपने data को effectively use नहीं किया था. But करेक्ट। these type of dashboards can help us solve these issues in a more convenient way and help us make smarter decisions, right? सृष्टि, व्हाट इज हैपनिंग, ये जो सारा डेटा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर Yeah. फीड हो रहा है डे 1 से, जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो Hmm. डेटा जब फीड होने लग जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू दीज स्ट्रक्चर्ड एचआरएमएस सिस्टम्स के थ्रू, तो क्या है Hmm. कि ऑटोमेटिकली दीज काइंड ऑफ डैशबोर्ड्स विल हेल्प यू आउट। Okay. या Yeah. So I want to ask to the audience if you have any questions, like you can put your questions in the chat box, then we are happy to address all your questions. Okay. If you have any questions, just put it in the chat box. Okay, sir. So moving forward, we have seen about recruitment, but जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो challenges हैं वो सिर्फ एक पार्ट को affect नहीं करते, it affects every part of the organization. करेक्ट। So could you please explain like how it affected? I guess the second case is, yeah, the second case is on learning and development. So what happened in Nixora? We are continuing the same story, same case of ओके। the company. So what happened in Nixora? जब उन्होंने इतनी सारे लोगों को हायर किया तो वो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, उनके स्किल्स भी बहुत डिफरेंट थे. सो वहां पे ना उनकी लर्निंग डेवलपमेंट में बहुत सारी इश्यूज हैं, जैसे हम नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डाइवर्स वर्कफोर्स led करेक्ट। to varied skill gaps, led to complex L&D, and यस। hence led to higher training cost. मतलब it
it directly affected the business cost of the organization. So, sir, Absolutely. could you please explain like what are the challenges in See, L&D? as I have told you earlier, कि what Yeah. happens, everything starts with the correct recruitment. और रिक्रूटमेंट के बाद में आप देखेंगे इस नेक्सोरा वाले केस के अंदर कि जब डाइवर्सिफाइड कैंडिडेट्स की हायरिंग करी जल्दबाजी के अंदर, तो Hmm. क्या हुआ कि आपके पास में कहीं पे 2 साल के एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट रिक्वायर्ड था और आपने 5 इयर्स वाले को हायर कर लिया रोल को क्लोज करने के लिए। हो सकता है कहीं पे आपको किसी पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड पर्सन था और उसको सेमी स्किल्ड था वो, और आपने उस पर्सन को हायर कर लिया। तो जब ये चैलेंजेस आएंगे, जब एलएनडी के पास में, जब एलएनडी का जब अपना प्रोसेस होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो, उसका प्रोसेस शुरू होता है टीएनए से, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। तो जब वो टीएनए का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा जब इस तरह का डाइवर्सिफाइड ह्यूमन रिसोर्स उसको मिलेगा ट्रेन करने के लिए, तो वो ये कैसे प्लान करेगा कि यार मैं किसके लिए कौन सी ट्रेनिंग कंडक्ट कराऊं। क्योंकि इतने सारे डाइवर्सिफाइड लोगों के लिए अब 100 लोगों को हायर करा, पोजीशंस क्लोज करी, कहीं पे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ले लिए, कहीं पे रोल स्पेसिफिक ले लिए, कहीं पे किसी को टेक्निकल, अब माइट भी ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी को टेक्निकल नॉलेज का इशू है, किसी को लीडरशिप का इशू है, किसी को कम्युनिकेशन का इशू है, किसी को हो सकता है कि मेरे को तो ये जानना है कि कंपनी में मेरा रोल क्या है और मैं उस रोल को कैसे परफॉर्म करूं। सो देर Hmm. आर मल्टीपल इश्यूज विद दीज कैंडिडेट्स जिनको हायर किया गया है। तो अब लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम के लिए यहाँ पे तो चैलेंज खड़ा हो गया ना, 4 तरीके के लोग हो गए, किसी को टेक्निकल इशू है, किसी को कम्युनिकेशन का इशू है, किसी को लीडरशिप, मेरे को टीम कैसे संभालनी है, मेरे को लीडरशिप क्वालिटी, मेरे को काम करना तो आता है बट मुझे लीडरशिप संभालनी नहीं आती कि मैं टीम लीड कैसे बनूं, तो मुझे तो उस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। किसी को रोल से रिलेटेड चाहिए। तो 4 तरह के प्रॉब्लम्स खड़े हो गए वेलेंडी के बाद में। यूजुअली जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ज्यादातर हाँ. टाइम क्या होता है कि जो एलएनडी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, वो एक ही तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देते हैं सभी लोगों को, जबकि कई बार उनको वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कई लोग सोचते हैं यार ये तो मेरे को आता है पहले से ही, मुझे ट्रेनिंग करके मेरा एनहेंसमेंट क्या हुआ इसमें। तो यहाँ पे क्या है, एक चैलेंज खड़ा हो जाता है बहुत बड़ा। तो ये चैलेंज जो है अगेन एड्रेस करने के लिए यू नीड डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द बैक एंड, कि यार हम किस तरह के लोगों को हायर कर रहे हैं, किस तरह के डाइवर्सिफाइड स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को हायर कर रहे हैं, और हम किस तरह का गैप यहाँ पे क्लोज ऑफ कर सकते हैं कम से कम, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम इंक्रीज हो। तो अब कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और लर्निंग प्रोग्राम्स अगर हम बनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल कॉस्ट द कंपनी। तो अब Yeah. कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए कंपनीज ट्रेनिंग कॉस्ट को कई बार बढ़ाती हैं, तो बढ़ाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं एम्प्लॉयज में, और जैसे ही वो उन पे इन्वेस्ट करती हैं तो एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि यार हमारी वैल्यू बढ़ गई मार्केट में, 50% से 200% हमारे को हाइक मिल जाता है मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग का बजट स्पेसिफिक मतलब इंक्रीज नहीं करती हैं या नहीं रखती हैं, रखती भी हैं, लेकिन इन दैट केस एम्प्लॉयज को अपनी वैल्यू ज्यादा लगने लग जाती है कि भाई हमें तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, फिर वो चीज उनके परफॉर्मेंस और कंपनसेशन पे जाके कहीं ना कहीं अटैच हो जाती है कि यार हमने तो Affected. ट्रेनिंग ले ली और हम तो बेटर हो गए हैं, और फिर यहाँ पे दिक्कत आती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर टीएनए नहीं हो अगर ढंग से, अब टीएनए का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, टीएनए का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अगर सही हुआ होगा, रिक्रूटमेंट अगर करेक्ट तरीके से हुआ होगा, रिक्रूटमेंट में जो भी चैलेंज है अगर उनको ढंग से टेकअप कर लिया जाएगा, तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं फेस होगा। क्योंकि जो कंपनीज के सीएफओ हैं, जब वो बजट रिलीज करेंगे एलएनडी के लिए, तो उनके लिए ये जब दिखेगा कि यार अलग अलग तरह की इतनी सारी डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग्स करानी है, तो वो बजट रिलीज ही नहीं करेंगे। वो बजट क्यों रिलीज करेंगे, वो कहेंगे आप तो एक तरह की ट्रेनिंग करवा दीजिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल आर सेम। So this things needs to be taken care while you are recruiting, and then recruiting से अगर आप L&D की तरफ जाएंगे तो it will definitely address the problem, the solution to the problem. Okay. And also जो L&D का part था, that affected the performance of the company because Absolutely, absolutely absolutely it is सृष्टि। going to affect. Yeah. एप्स, So देखो सृष्टि क्या है कि ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है ना, इट इज कनेक्टिंग द डॉट्स है। yeah, it is. रिक्रूटमेंट में अगर कहीं कुछ फ्लॉ रह गया तो वो एलएनडी के अंदर आएगा, एलएनडी से वो परफॉर्मेंस में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेगा। ये बात Yeah, and it फैक्ट है। affected there.
Yeah. Yes. So There was inconsistent hmm, performance in the company. yes. सो अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टीम बहुत डाइवर्सिफाइड है। देखो अगेन आई विल से कि वही चार तरह के इश्यूज जो हमने बात करे कि किसी को टेक्निकल इशू है, किसी को कम्युनिकेशन इशू है, Technical. तो हर एक का अपना मैनेजर का पैटर्न अलग है चीजों को जज करने का। मतलब मेरी जो यार्ड स्टिक है या जो मेरा जो मेजरमेंट है मेरे टीम के बंदों को मेजर करने का वो अलग है और किसी और का है तो वो अलग है। तो कोई तो लीनियंट होगा, कोई ज्यादा हार्ड होगा, कोई बहुत स्ट्रांग परफॉर्मर होगा लेकिन उसका जो मैनेजर होगा वो बहुत ज्यादा हार्श होगा। इट Hmm. कैन बी एनी काइंड ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। Yeah. कुछ लोग एक्सीड एक्सपेक्टेशन करेंगे कंसिस्टेंटली, कुछ लोग एक्सीड नहीं करेंगे एक्सपेक्टेशंस को। ओके, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहेगी। सो अब यहाँ पे जो ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप इवैल्यूएशन मेथड, जब हमने पहले भी बात करी कि आप इवैल्यूएशन मेथड कैसा यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री फीडबैक है, इवैल्यूएशन मेथड आपका आपका एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है। आप व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू आर यूजिंग, हाउ यू आर इवैल्यूएटिंग योर एम्प्लॉयज, देयर शुड बी अ प्रॉपर स्केल टू इट, है ना। एंड इनकंसिस्टेंट असेसमेंट्स जो है ना, हर मैनेजर की अपनी एक यार्ड स्टिक के कारण तो वो क्या डिसीजन नहीं ले पाते। और अगर आपके पास में ये एनालिटिकल पावर हो कि परफॉर्मेंस को मैं कैसे रेट करूं, कहाँ ले जाऊं, कैसे करूं, तो आप बहुत जल्दी अच्छे से डिसीजन ले पाओगे उन एम्प्लॉयज के लिए। तो इसका डेफिनेटली यार परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट तो बिजनेस पे ही आएगा, एट द एंड ऑफ द डे लॉस होगा Yes. कंपनी का। तो यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो इम्पैक्ट ना आए, वो आगे फिर हम जाएंगे जब आगे वो चीज लीड कर जाएगी कंपनसेशन पे। लेकिन हम पहले इस चीज की प्रोडक्टिविटी और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को एक डैशबोर्ड जो है अपना उसके थ्रू एक बार लेट अस गो थ्रू दैट एंड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो सकता है बेस्ट। Sure, sir. So this is our dashboard. So is this visible to everyone? Yeah. सो So this is our या dashboard, yes. प्लीज सृष्टि। So this is our dashboard for like evaluating the performance of the employee. So sir, could you please explain all the Yes. So now there are two very important things here. Number one is you can see the dashboard and you can see the figures where total 100 employees have been evaluated। उसमें ये निकल के आया, उनकी रेटिंग्स की गई। अब जो रेटिंग हुई फर्स्ट पॉइंट में, उनको रेटिंग्स जो दी गई वो उनका बेसिस क्या था यहाँ। और सेकंड, ये एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि आज हमने जो रेटिंग करी है किसी एम्प्लॉय की वो पिछले साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे करी है, बट उसमें पोटेंशियल है इंप्रूव करने का। तो पोटेंशियल वर्सेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो आप नीचे देख सकते हो, इससे यू कैन इजीली इवैल्यूएट कि हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो फ्यूचर लीडर्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं जो कि रिलायबल परफॉर्मेंस है, जो कंटिन्यूअसली रिलाय कर सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पे, जिनकी कौन ऐसे लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस का रिस्क है, कौन से ऐसे लोग हैं जो हिडन जेम्स है जिनको फ्यूचर में आप अच्छा लीडर बना सकते हो। हिडन जेम्स वाले एम्प्लॉयज भी आप इसमें देख सकते हो स्कैटर्ड चार्ट। तो ये एनालिटिक्स इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल। मैं अगर होवर करूंगा तो मेरे को हर एम्प्लॉय का डिटेल आ जाएगा इसके ऊपर। सो yeah. दैट इज आई मीन अ ग्रेट थिंग टू डील विद। नाउ यू कैन सी, एक जैसे हमने एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के ऊपर आ गए हैं, उसका पोटेंशियल, उसको ग्रेड्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसका एक्सपीरियंस, उसका टेन्योर, उसकी एजुकेशन, उसके फीडबैक्स, एबिलिटी टू लर्न, कैसा वो लर्न कर रहा है, कैसा वो अचीव कर रहा है, क्या उसका स्किल लेवल है, उसकी लर्निंग एजिलिटी कैसी है, एडेप्टेबिलिटी कैसी है। जहां पे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है वो एरिया आप कवर कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, आप उस पर फोकस कर सकते हो, आप अपनी टीम के ऊपर वर्क कर सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग ही आप उनको कंपनसेशन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो जिससे उनको मोटिवेशन मिले। उनको ये भी लगना चाहिए कि यार हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो हो गया, हम लोग इस एरिया में इस फैक्टर्स में हम डिवाइड भी हो गए कि हम कौन है, लेकिन उनको मोटिवेशन जब मिलेगा जब उनका कंपनसेशन फेयर होगा और प्लस उनके ये जो एरियाज हैं, जो ये उनके ड्रॉबैक्स हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज पे, उनकी टीम्स, उनके जो टीम लीडर्स हैं, उनके जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन एरियाज के ऊपर होमवर्क करेंगे, देन दे विल गेट द
outcome what is desired with them. यस सर. So एंड yeah, यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट भी होती है, वाई डेटा इज इम्पोर्टेंट हियर, बिकॉज एम्प्लॉयज को ये भी रहेगा कि हाँ हमारा डेटा ऑलरेडी फीड हो रहा है and उसके बेसिस में हमको हमारी पे मिल रही है, कॉम्पनसेशन हमारा उस बेसिस absolutely. हमारा मैनेज हो रहा है. Absolutely. या Absolutely. Here. See, Shrishti, यहाँ पे क्या है कि its performance will lead to compensation methods डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगा. किस तरह का compensation, किस तरह का बेनिफिट, किस तरह का एम्प्लॉय बेनिफिट डिजर्व करते हैं कौन से एम्प्लॉयज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डेटा का फ्लो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर. ऑल्सो यस, बिकॉज इसी डेटा से हमें एलएनडी का जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है यहाँ पे, कि हमें Absolutely. कहाँ पे In किस see पर्सन को again क्या in ट्रेनिंग देनी है. डैशबोर्ड्स या आर मेड, these HR एनालिटिक्स इज नथिंग बट ये जो डैशबोर्ड्स हैं ये हमारे को इंसाइट्स दे रहे हैं, या हमें मैनेजमेंट को एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और कैसे बेटर बना सकते हैं हम हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर को, हम और कैसे बेटर ग्रो कर सकते हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस में चार चांद कैसे लगा सकते हैं, मैं यूं कहूंगा इसको. यस, दैट्स ट्रू. Because these dashboards are really helpful to manage everything. That's यस. the most important thing is the costing of any organization. राइट. Okay. So moving ahead, we have the next case that is, okay. So we have a case that is on compensation. So we have the statistics from SHRM. So let me read out it for you. So we have the statistics like 74% of HR professionals said inadequate compensation was a top reasons of employees leaving their organization. 64% of compensation decision makers identified wage discrimination as compensation problem, while 53% cited pay compression. 34% HR leaders do not believe their organization is transparent about the pay. So, obviously, the major problem in any organization or of any employee is about compensation. So, sir, could you please tell about compensation and what are all the challenges occur in compensation? See, the most things which are there has already been covered. That सबसे major problem is that increments, promotions, skill development, they should be right. These are the main challenges for an organization while doing the compensation. So, uh, promotions, leadership plans, retentions, reskilling, recognition, all these things are very much important. So organization at the time of L&D are already have invested. अब उस आपने किसी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में उसके अच्छा खासा आपने इन्वेस्टमेंट किया, एंड नाउ वही चैलेंज सेम, वो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मेरे को कॉम्पनसेशन भी अच्छा मिलेगा, बट उसका जो आपने इन्वेस्टमेंट इस साल किया उसका जो आउटपुट आएगा वो मे बी नेक्स्ट ईयर आएगा. हो सकता है इस साल उतना अच्छा कॉम्पनसेशन नहीं वो डिजर्व करे, कि अभी उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना बाकी है, उसका पोटेंशियल अभी एक्सप्लोर होना बाकी है. सो दीज आर द चैलेंजेस वेयर these things arise with the organizations with the compensation. And again I would say कि ट्रेनिंग कॉस्ट जो लगाई है वो ऑर्गेनाइजेशंस ने एक प्रोडक्टिविटी पाने के लिए लगाई है, और वो करेक्ट भी है कहीं हद तक. उससे एम्प्लॉय को बेनिफिट भी हो रहा है कि भाई आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, यू आर गेटिंग सर्टिफाइड एज वेल. कई कंपनीज तो सर्टिफिकेशंस, हाई एंड सर्टिफिकेशंस में इन्वेस्ट कर रही हैं, एंड योर इंडस्ट्री वर्थ इज गेटिंग हाई. तो आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू तो इंक्रीज हो ही रही है एम्प्लॉय की. सो दिस कॉम्पनसेशन वाला जो पार्ट है इसमें ये चैलेंजेस आता ही आता है कि ज्यादातर जो लोगों का डिससेटिस्फैक्शन होता है वो उनकी पे को लेते हो, पे को लेके होता है कि यार हमने जो पास्ट में काम किया उतना हमें हाइक नहीं मिला, जो डिजर्व करते थे उतना बेनिफिट्स नहीं मिले. हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज को ये लगता है कि इस साल हम लोगों को बोनस अच्छा मिलेगा, या
प्रमोशन मिलेगा, या फिर हो सकता है उनको ऐसा फील होता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर कंपनी हमारे जो ईसॉप्स का शेयर है वो बढ़ा देगी। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन द वही वो वाली स्टोरी आ जाती है कि चार मैनेजर, उनके चार चार यार्ड स्टिक हैं, सबके अलग अलग उनकी रेटिंग्स के अलग अलग मेथड हैं, और किसी का इजी है, किसी का स्ट्रिक्ट है। लेकिन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे फ्यूचर में क्या काम करने की क्षमता रखता है एम्प्लॉय, वो फिगर आउट होना बहुत जरूरी है। उसके कारण उसके थ्रू ही, उसी मेथड के थ्रू ही आपको ये पता चलेगा कि किन एम्प्लॉयज को आपको रिटेन करके ऑर्गेनाइजेशन में रखना है विद अ बेटर कंपनसेशन अडॉप्शन। Okay. So this is the major part, like the compensation is the यस। major part of हाँ, any इस organization. पेरोल का प्रेशर आए, कंपनसेशन जब डिजाइन होगा तो पेरोल के ऊपर भी प्रेशर आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कंपनी की भी, देर आर लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। कट शॉर्ट करने की सोचते हैं कि यार कम कर देते हैं, बट दीज चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। और डेफिनेटली जब आपके पास में एनालिटिकल डैशबोर्ड्स होते हैं तो आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। अगेन द डेटा फ्लो एंड इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द डैशबोर्ड्स, अभी तो हमने पेरोल, रिक्रूटमेंट और परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड्स देखे हैं, तो देर आर डैशबोर्ड्स विच आर रिलेटेड टू कॉम्पनसेशन, दे कैन सजेस्ट Compensation. इनसाइट्स। यस, इनसाइट्स मिलते हैं, Yeah. डेफिनेटली मिलते हैं। अगेन द स्ट्रक्चर्ड डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है। Yes. Also, क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयज के ये क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ कैन आई ट्रस्ट कि ये जो मेरे को पे मिल रहा है सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट वी हैव द डैशबोर्ड्स, वी हैव द डेटा पॉइंट्स कि आपका पोटेंशियल है, आपका परफॉर्मेंस है, एंड और इन दैट वे सबसे यू आर बड़ी बात रेटिंग योर पे। ये सब एक्चुअली सृष्टि इसमें क्या सबसे बड़ी बात है कि जो भी डेटा है, जो भी डेटा का फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल है, जो हुआ है। आई मीन या इट्स हिस्टोरिकल डेटा विच हैज हैपेंड इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द एम्प्लॉय। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसका डिसीजन कहीं ना कहीं, एक्यूरेसी ये तो नहीं कह सकते कि 100% होगी, बट यस, विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा एनालिटिक्स 90-95% डेटा एक्यूरेसी होने के चांसेस है व्हाट यू विल बिहेव विद द एम्प्लॉय। यस, एंड ऑल्सो टू द ऑडियंस, जो भी डैशबोर्ड हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द डेटा पॉइंट्स, ऑल द केपीआईज एट द एंड ऑफ द सेशन। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू. So moving forward, we have seen till now about recruitment, about L&D, about performance, about compensation. But there still one lies the biggest challenge for any organization. So I want to ask to our audience, what do you think could be the next challenge or the biggest challenge any organization faces? Please answer your responses in the chat box. Okay, so I'm getting responses. Compensation, yes, but we have addressed that. So what could be next? Objective PMS, HR cost, vs revenue, okay. Motivation and engagement, employee benefits, okay. So we are getting many, okay, we got one response, that is attrition. So yes, the biggest challenge for any organization is attrition. Because recruitment, L&D, performance and compensation, if we see, it leads to increased attrition. So, Mr. Rajat, could you please explain about these challenge? See, again, where we have started, again, this is a most important part, I would say, Yes. attrition. Because जैसा कि मैंने पहले भी बोला, पहले भी अपन ने डिस्कस किया कि ये चेन है, इट्स अ फ्लो। तो चेन में अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी, सो रिक्रूटमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट, देन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, देन परफॉर्मेंस, देन कॉम्पनसेशन, एंड you can see the employees going out of the organization where attrition comes. तो ये जो पांच चीजों की, ये जो चार चीजों की जो ये चेन है, रिक्रूटमेंट, L&D, परफॉर्मेंस, कॉम्पनसेशन, यहाँ पे अगर किसी भी एरिया में लैग होगा तो एम्प्लॉय विल गो आउट, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट इटसेल्फ। वेदर L&D से डिससेटिस्फाइड है एम्प्लॉय, वेदर परफॉर्मेंस की जो रेटिंग की गई है उससे डिससेटिस्फाइड है एम्प्लॉय, उसके केपीआई के आरएस जो बनाए गए हैं, डिजाइन किए हैं, उसका जो रोल असाइन किया है, उसको जो मल्टीपल टास्क आपने दिए हैं, सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी केटर। कॉम्पनसेशन अगर सही से डिफाइन नहीं किया है आपने, उसका उसका
स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं है, उसका टैक्सेशन सिस्टम नहीं, कहीं भी अगर आप उसको डिससेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉय को, इट विल लीड टू एट्रिशन. Then here comes the role of the HR and management decision makers to improve ये attrition को रोकने का. You have written clearly क्या करना चाहिए इस increase attrition को रोकने का. मतलब आप sometimes what happens कि you are investing in people in terms of L&D, you are giving them the industry according salaries also, but still people are, you are losing talent. So यहाँ पे work environment का भी role हो सकता है. Other factors are also there कि उसको वर्क एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, उसको रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं, उसकी टीम को रिसोर्सेज, किसी टीम लीडर अपनी टीम को रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड कर रहा है. सो देर आर मेनी रीजंस फॉर दीज एट्रिशंस, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू हैव टू स्टेप बाय स्टेप चेक ईच एंड एवरीथिंग. वो होता क्या है यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जब एग्जिट हो रहा होता है तब एग्जिट इंटरव्यू होता है. मेरा ये मानना है एग्जिट इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम स्टे इंटरव्यू होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में उसकी चैलेंजेस और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुननी चाहिए, उसको एड्रेस जहां तक कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस और टीम्स, वो उसको एड्रेस करें, और देन दे शुड फील, उनको फील होगा कि एम्प्लॉयज लॉन्गर टर्म के लिए स्टे कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में. या सो टाइम सर्वेज हो कि एब्सोल्युटली, उनके जो भी सर्विस होने, सर्वे चैलेंजेस होना, उसको एड्रेस फीडबैक होना किया जाए, चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, फीडबैक्स टाइम होने टू टाइम चाहिए. फीडबैक या होना चाहिए, प्रॉपर बेंचमार्किंग होनी चाहिए, सैलरीज पे करने के लिए प्रॉपर बेंचमार्किंग होनी चाहिए. यूजुअली क्या होता है जब एट्रिशन होता है ना, मतलब एग्जिट इंटरव्यू हो रहा होता है, उसके बाद में आप ये देखते हो, फीडबैक पढ़ते हो कि यार ये क्यों चला गया. मतलब वो जैसे होता है ना कि कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है और उसका पोस्टमार्टम हो रहा होता है उसके मरने के बाद में, उसकी बायोप्सी, ऑटोप्सी हो रही होती है, तो ऐसा हम पेपर्स को देखते हैं यार कौन कौन लोग छोड़ गए, किन कारणों से छोड़ गए, आगे आने वाले लोग तो उस कारणों से नहीं छोड़ पाएंगे, तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए लोग छोड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है. बट स्टिल व्हाट आर यू डूइंग टू रिटेन देम इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो उस एट्रिशन को रोकने के लिए किस तरह का आप प्रोग्राम डिजाइन करते हो, किस तरह के चैलेंजेस, उनको डील करने के लिए आप किस तरह के, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए मैंने कहा कि स्टे इंटरव्यूज होने ज्यादा जरूरी है रादर देन एग्जिट इंटरव्यूज. उनका एंगेजमेंट हो सकता है नीचे जा रहा हो, जब वो काम कर रहे हो तो आपने उनको एड्रेस करना है. उनका हो सकता है कि बहुत ज्यादा मीटिंग्स हो रही हो तो भी उनका डाइवर्जन हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि छोटे 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 छोटे, जो एम्प्लॉय के साथ में जब आप कंटिन्यूअसली फीडबैक लेते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी एक रीजन हो सकता है कि उसको हो सकता है कोई पर्टिकुलर आपने टास्क असाइन किया और वो उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा हो, तो वो आप कैसे उसको डील करते हो. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस नॉट अडॉप्टिंग दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, दे आर डूइंग, बट स्टिल नीड टू डू लॉट ऑफ वर्क इन दिस एरिया. we got one question from audience too, like how to control attrition rate, and this is already answered by you कि हम feedbacks ले regularly उस employee की ताकि हम attrition rate कम कर सके वहां पे एब्सोल्युटली. on that time. मतलब Yeah. वार्निंग साइंस है सृष्टि, वार्निंग हम्म. साइंस दे देता है एम्प्लॉय. जब एम्प्लॉय जाने वाला होता है ना ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो क्या, वार्निंग साइंस दिखने लग जाते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि मैं जाने अटेंडेंस. वाला हूँ. हाँ, अटेंडेंस में कहीं ना कहीं इशू आने लग जाता है, लीव ज्यादा हम्म. होने लग जाती हैं, कोई और रीजंस आने, मतलब देर, यू विल फील द सिम्टम्स. जैसे बुखार आता है तो सिम्टम आते हैं ना पहले, तो बस उसी तरह से ये हम्म. चीज है. तो उसको डॉक्टर को टाइम पे दिखा लो, टाइम पे दवाई ले लोगे तो क्या है, इट विल रिजॉल्व द इशू. So we got one more question. Can we predict employee attrition? Like who's are thinking of leaving the organization? Who is going to leave the organization? Can we predict it? सो सी, अगेन आई एम सेइंग कि जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, प्रिडिक्शन किया जा सकता है, बट प्रिडिक्शन कैन नॉट बी एक्यूरेट. Yeah. हम अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, यस वी कैन डू, बट वी शुड हैव अ डेटा फ्लो. डेटा फ्लो जो हो रहा है, अगेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा आ रहा है आपके पास में, जो डे बाय डे की एक्टिविटीज पंच हो रही हैं हर एम्प्लॉय की आपके सिस्टम के अंदर, उसी से वो डेटा बन रहा है. और उस डेटा के बनने के प्रोसेस को और उन पैटर्न्स को आप डैशबोर्ड्स के थ्रू, एनालिटिक्स के थ्रू अज्यूम कर सकते हैं, इंसाइट्स देख के ये पता लगा सकते हैं कि हाँ यार यहाँ कुछ बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल रहे थे,
नाउ वी कैन डिस्कस विद दिस एम्प्लॉय, जिससे हम माइट बी एट्रिशन कैन बी चेकड आउट कि कैसे इसको हम रोक सकते हैं. बट अगेन प्रिडिक्शन कैन नॉट बी 100% करेक्ट, इट मे बी हेल्पफुल. तो अगर मैं पॉइंट्स कनेक्ट करूं, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर हमें एट्रिशन रेट को डिक्रीज करना है या फिर उसको अगर हमें मैनेज करना है, सो हम फीडबैक्स ले रेगुलरली एंड समवन आस्क्ड अबाउट हाउ कैन वी प्रिडिक्ट इट, तो अगर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे स्टेयर्स हैं फ्रॉम पास्ट ईयर्स लाइक 10 to 20 years, उनके भी फीडबैक्स आए होंगे हमारे पास, एंड द एब्सोल्युटली. लीवर्स जो छोड़ के जा रहे थे उनके भी हमारे पास फीडबैक्स होंगे, सो वी कैन कंपेयर एंड वी कैन लाइक प्रिडिक्ट, एंड वी कैन प्रिडिक्ट कि यस. कौन रिस्क पे है, एंड वी कैन लाइक यस. हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं कि सी वो यहाँ पे, एम्प्लॉय छोड़कर ना यहाँ जाए। पे यहाँ पे जो ग्राफ, जो प्रिडिक्शन होगा ना, एम्प्लॉय हम्म। सेटिस्फैक्शन का जितना ज्यादा पॉइंट हाई होगा, उतने ज्यादा हम्म। चांसेस हैं कि एट्रिशन विल नॉट गो, एट्रिशन नहीं होगा. तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का जो ग्राफ है वो हाई रहना चाहिए हमेशा, मेरा ये मानना है. आप इसको मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा. तो जितना हाई एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रहेगा और वो आपके साथ कंटिन्यू बना रहेगा. Yes, and I got one question more. How to receive feedback from any employee? हाउ टू. It is सॉरी. through how to receive feedback through any employee. सो देर आर मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म्स बने हुए हैं. Yeah. आप उनके थ्रू आप इनफॉर्मल भी ले सकते हैं, आप फॉर्मल भी ले सकते हैं फीडबैक्स. आप ग्रेप वाइन मैथड भी यूज कर सकते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, आप उनका वर्क भी देख सकते हैं, आप उनसे डिस्कशंस कर सकते हैं. देर आर लॉट ऑफ मेथड्स. यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक फॉर्मल मेथड के थ्रू ही करते हैं. Okay. So, sir, moving on to the next slide, we have some statistics. Okay, it is also from SHRM. So, we have statistics about why employees leave their organization. So, could you please explain or go through these points So for it's us? this SHRM report is self-explanatory, Srishti. It's saying Yeah, that it's you can see that the only one reason for dissatisfaction is inadequate great total total compensation. हाँ, वो compensation. सैलरी से डिससेटिस्फेक्शन होके ही सबसे ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं. मैं आई मीन यही एक सबसे बड़ा, आई थिंक सो, वर्ल्ड SHRM कह रहा है तो ये डेफिनेटली इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही सेम प्रॉब्लम है. सो देखिए, ऐसा होता है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू कैन पुट इन एन एम्प्लॉय. आप उनको बढ़िया ट्रेनिंग दे सकते हो, बढ़िया एनवायरनमेंट दे सकते हो, वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे सकते हो, आप उनको कंटिन्यूअस ग्रोथ दे सकते हो. बट स्टिल देखिए, ह्यूमन बीइंग से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा बना रहेगा. लोग जाएंगे छोड़ के. अगर ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा बेटर देंगी, जैसा कि मैंने कहा, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का ग्राफ हाई रहेगा, तो एट्रिशन कम रहेगा. और जो लीव हो रही है ऑर्गेनाइजेशन से, अच्छी मैन पावर, अच्छे ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, या टैलेंट ड्रेन हो रहा है, वो होना बंद हो जाएगा होपफुली. Yeah. करियर डेवलपमेंट भी एक रीजन इन्होंने बोला है. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे जो ऑर्गेनाइजेशंस फोकस नहीं करती हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करियर डेवलपमेंट, L&D कंटिन्यूअसली चलना चाहिए. वर्क प्लेस पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मतलब ये सारे पॉइंट्स, it is for each and every kind of organization, whether it is small, whether it is medium, whether it is large. तो ये कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ना कोई पॉइंट फिट बैठ ही जाएगा, तो उनको उसके ऊपर होमवर्क करने की रिक्वायरमेंट है. इस चार्ट से हम ये देख सकते हैं. Okay. So, Rajat sir, we have one question for you. There's one attendee who is asking, that attendee is difficulting having to screen 5 employee out of 100 application. How to manage and save time? Like he's saying, he's getting 100 applications for 5 employees. Now, how he's going to manage or save time there? It is again going back to recruitment. So, see, there are mechanisms these days. I mean, there are AI systems these days where you can. First thing is, जो आपके पास में एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, देखो चैलेंज सृष्टि कहाँ से ओपन होता है. जो एप्लीकेंट्स 100 एप्लीकेशंस आ रहे हैं और स्क्रीनिंग करनी है, तो सबसे पहले तो आप उनको ये देखिए कि अब आजकल AI टूल्स अवेलेबल हैं, या स्ट्रक्चर्ड HRMS सिस्टम है, तो आप उसमें क्या है, JD पहले से ही पोस्टेड होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि हम किस कैंडिडेट को किस फंक्शन या किस रोल के लिए हायर करने वाले हैं. तो उसका रिज्यूमे, जो CV है, रिज्यूम है, वो उस JD से मैच होना चाहिए. नंबर 1 क्राइटेरिया. जितने भी
एप्लीकेंट्स हैं, जरूरी नहीं है उनका उस जो पर्टिकुलर आपको रोल असाइंड है, जेडी असाइंड है, उससे मैच करता हो। तो फर्स्ट फिल्टर तो यहीं पे लग जाएगा, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग जो टाइम है वो आपको मैच हो जाएगी। नंबर टू, आप ये यूजुअली जब हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हायर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी सिमिलर इंडस्ट्री से है क्या, सिमिलर तरह का काम कर रहा है क्या, तो यहाँ पे लेवल 2 पे फिल्टर लग जाता है। तो अगर आप ये दो फिल्टर लगा लेंगे तो आपके पास जो 100 एप्लीकेशंस आई हैं, तो शायद वो शॉर्टलिस्टेड होके 10 या 15 या 20 पे रह जाएंगी। तो दिस नीड्स टू बी डन विद स्मार्टली, with the help of structured HRMS system or AI system. You can do this. So we have seen so far about recruitment, L&D, performance, compensation, and attrition. All these challenges can be solved through our data, the data that is present in any organization. But if the data is not structured, as you said, we can't take any insights from that, right? So, like, could you just give a brief overview about HR analytics or the data or the structured data, HRMS? Why So, it is Srishti, important to us today? yes, it is important. See, what happens कि जो पहले, अब देखो अपन यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे वर्क होता था, पेन पेपर पे वर्क होता था। याद Hmm. करो, फाइल्स लगी रहती थी Yeah, ऑफिसेस के अंदर, राइट? बहुत files. सारी फाइल्स थी और पेपर वर्क था और उनकी रिपोर्ट बनाने में बहुत टाइम जाता था। देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइपराइटर, तो थोड़ा टाइपिंग होने लग गई, इजी हो गया, पेन से लिखने में दिक्कत कम हुई और अपन ने रिपोर्ट्स थोड़ी पब्लिश करनी शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ टाइपराइटर। एंड देन कम्स द कंप्यूटर एरा, वर्ड पे फाइल्स बनने लग गई, रिपोर्ट्स बनने लग गई, डेटा बनने लग गया, एंड देयर कम्स द टूल कॉल्ड एक्सेल। जो एक टूल आया एक्सेल, जो कि आज भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हो रहा है। तो एक्सेल पे ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, कई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस आज भी एक्सेल पे चल रही हैं, सारा डेटा एक्सेल पे फीड होता है। लेकिन आप कुछ पिछले कुछ सालों में कई ऐसे एचआरएमएस सिस्टम आ गए हैं जो आपका डेटा स्ट्रक्चरली फीड करते हैं फ्रॉम द डे आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो। तो मतलब आप लिंक भेजते हो एचआरएमएस का, स्ट्रक्चर्ड डेटा का, एचआरएमएस का सीधा लिंक जाता है कैंडिडेट के पास में, वो उसमें अपना डेटा फीड करता है। डेटा फीड करने के बाद में उसका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उसकी रेटिंग और सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। आप फ्यूचर में जब जाओगे और उस वापस कभी एप्लीकेशन आ जाती है उस कैंडिडेट की, तो आप देख सकते हो कि उसने इंटरव्यू दिया था और उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। तो ये एक्सेल नहीं कर सकता, ये पेन पेपर Hmm. वर्क नहीं कर सकता, ये मैनुअल वर्किंग में नहीं हो सकता। ये केवल और केवल किसी स्ट्रक्चर्ड, परफेक्ट या फिर एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो सकता है। इसीलिए Through सॉफ्टवेयर की, HRMS. यस, वेदर इट इज ईआरपी, एचआर ईआरपी, वेदर इट इज एचआरएमएस, वेदर इट इज एचआरआईएस, कोई सा भी सॉफ्टवेयर बोल लो, एक्चुअली ये सारा स्ट्रक्चर्ड जब ही होगा जब एक सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्ड होगा पहले, और उसमें ये डेटा सही तरीके से फीड होगा। देन ओनली दिस एचआर एनालिटिक्स जो अभी अपन ने डैशबोर्ड्स देखे और ये जो जनरेट हुए डैशबोर्ड्स और ये जो इतने इंसाइट्स हमें मिले, ये जब ही मिल पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट यार। रिक्रूटमेंट का एक अपना अलग प्रोसेस है, अलग टीम है, एलएनडी की अपनी अलग टीम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अपनी अलग टीम है, कॉम्पनसेशन की अलग टीम है, एट्रिशन एचआर टीम, कोर टीम कई बार डील करती है, सबकी अलग अलग टीम है, सबके अपने अपने एक्सेल हैं। कहाँ तक मर्ज करोगे, कहाँ से प्रेडिक्शन निकालोगे, कैसे निकालोगे, पाइवेट से कितने डिसीजंस आप कर लोगे? एक्सेल पे पाइवेट बना लिया, स्लाइसर लगा लिए, और आप कह रहे हो कि मैं एनालिटिक्स कर लूंगा उसके बेसिस के ऊपर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। इतने इंसाइट्स नहीं मिल पाएंगे जितना एक एचआरएमएस सॉफ्टवेयर में मिल पाएंगे। Even one question came, can we integrate AI to analyze our data? So यू यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आता है. Could you you are please saying, explain? Yeah. yes, अभी आई टोटली एग्री कि एआई का एरा आ गया है और सारी चीजें एआई बेस्ड हो गई हैं, प्रॉम्प्ट डालेंगे और चीजें जनरेट हो जाएंगी। लेकिन माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। देखिए, जो एआई है वो एक तरीके का टूल है केवल, वो एक सिर्फ आपका एक हेल्पफुल साथी है। आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते। ये जो भी हमने यहाँ पे बार बार जो हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डेटा, फ्लो ऑफ डेटा, किस तरह का हम डे वन से डेटा फीड कर रहे हैं सिंस द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट, ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट एआई नहीं कर पाएगा। और आप अपनी, अगर मान लीजिए आप
पेन पेपर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है या एक्सेल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या आप अपना डेटा एथिकली करेक्ट है कि इतने सारे कैंडिडेट्स का डेटा आप एआई सिस्टम में डाल रहे हैं और उससे डेटा जनरेट करा रहे हैं, क्या ये करेक्ट है? एथिकली तो ये करेक्ट नहीं है। एआई एथिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि आप किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को लॉस करें और उसका डेटा फीड करके आप एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स बनाएं, तो दैट इज रॉन्ग। और अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि हम ऐसी इंपॉर्टेंट डेटा में से चीजें फिल्टर आउट कर देते हैं और फिर हम एनालिटिक्स बना लेते हैं, तो फिर वो यूजफुल नहीं है। तो ये जो ह्यूमन टच है, ये जो एम्पैथी है, ये जो कॉन्टेक्स्ट समझने की पावर है, ये डिसीजंस लेने की जो पावर है, वो एआई यू कैन सजेस्ट यू, वो आपका एक साथी है, हेल्पफुल साथी हो सकता है, बट एआई अलोन कैन नॉट डू दैट। वो एनालाइज कर सकता है, डेटा को रीड कर सकता है, वो फिगर्स दे सकता है, वो कैलकुलेशंस कर सकता है, वो आपके ह्यूमन रिसोर्स की जो स्टूडेंट्स अगर हमारे आज का कोई देख रहे हैं, तो वो जिन लोगों के पास एचआर एज अ सब्जेक्ट है, एचआर एनालिटिक्स, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स होती है। तो वो मैट्रिक्स, बहुत सारे तरह की मैट्रिक्स होती है, तो एआई कैन कैलकुलेट दोज मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कैलकुलेट करके फिगर का रिजल्ट दे सकता है, लेकिन जो ह्यूमन टच रिक्वायर्ड है वो नहीं होगा। तो वो तो केवल आपका एक, जो आपने कंपनी ने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है एचआर से रिलेटेड, उसी के थ्रू हो। यू कैन So we can डाउन say, हाँ, यू कैन डाउनलोड अ स्पेसिफिक डेटा सेट, और उसका एनालिसिस माइट बी यू कैन डू विद जनरेटिव एआई। मैं ये नहीं कह रहा एआई बिल्कुल गलत है, बट ह्यूमन टच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना ह्यूमन टच के तो कुछ भी नहीं है। इवन आज की डेट में आप बड़ी बड़ी रिसर्च जो हो रही है वो एआई और ह्यूमन को लेके एचआर टीम्स जो कर रहे हैं, वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलाइंग कि यार ह्यूमन टच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरेटिव एआई एक अपनी जगह है, लेकिन ह्यूमन टच अपनी जगह है, तो वो उसको नहीं चेंज कर पाएंगे। उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हम टोटल एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। वी नीड अ प्रॉपर एचआरएम सॉफ्टवेयर फॉर ऑल दीज वर्क। बिकॉज यहाँ पे ये चीज भी आंसर होती है, बिकॉज अगर हम इतना सारा हमारा डेटा अगर हम एआई में डाल रहे हैं, तो हमारी डेटा की जो सिक्योरिटी है वो भी रिस्क पे आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती, And AI बिल्कुल is आती just है। like a companion, as you said. यस, AI is just यस, your companion, it's your helper. यस। So this answers the major question in the screen. Can AI replace human decision making in HR? Or इट human कैन, intervention is still essential? सो इट इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट कैन Yeah. हेल्प यू इन मेकिंग अ डिसीजन। आप कोई, ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में 2 पॉइंट चल रहे हो और एआई की मदद से आपको 4 पॉइंट मिल जाए, और आप वो 4 पॉइंट सोचने के बाद में कोई नया 5वें पॉइंट के ऊपर डिसीजन ले लो। दिस अगेन, what you have told and what I have said, कि this is just a companion to give you a just वो वाला एंगल जो आप नहीं सोच पा रहे, वो एंगल वो दे देगा, बट वो एंगल का सही इस्तेमाल तो ह्यूमन बीइंग ही कर पाएंगे, एआई नहीं कर पाएगा। एआई उसका रॉन्ग यूज भी कर सकता है। So मतलब AI हमको डीपर इंसाइट्स देता है उसी डेटा का, बट डेटा भी हमें स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, क्योंकि जब तक वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अस द हेल्प। appropriate result. So structured way में तब होगा जब HRMS हो, जहाँ हमारे पास डैशबोर्ड्स हो, and then करेक्ट। through that we can use AI तो for ये जो deeper आप, insights. हाँ, Yeah. एचआरएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर भी एनालिटिकल डैशबोर्ड्स जो है, वो जरूरी नहीं है हर सॉफ्टवेयर में हो। वो तो स्पेसिफिक अच्छे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आपको एचआर एनालिटिक्स के डैशबोर्ड्स मिलेंगे, जो फ्लो Yeah. ऑफ डेटा को समझेंगे और सही डेटा प्रिडिक्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन बनाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो एचआर जो टीम्स हैं, जो एचआर के हेड्स हैं, सीएचआरओ हैं, हेड ऑफ एचआर हैं, उनके लिए ये देखना बहुत जरूरी है यार किस तरह का सॉफ्टवेयर है, और ये डेटा को किस तरह से ले जाके और एनालिसिस कर रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा है, और ये किस तरह करेक्ट वर्क कर रहा है, इसका फ्लो। वो भी एक अपने आप में चीज है जो कि एचआर टीम्स को देखनी चाहिए। It's not only about AI. Also, we have a quiz in the end of our session, and through that quiz, जो भी winner होगा, that winner is going to get a free trial, 7 day free trial of HR Analytics module. So वहां से आप अपने डेटा को structured way में ला भी सकते हैं, and वहां से आप insights भी निकाल सकते हैं. We are going to provide all the data points through which you can, like, उसमें से आपके क्या insights निकल सकते हैं, आप कौन से data points आपको use करनी चाहिए, सब कुछ आपको end of the session मिलेगा. But before that, let's move on to the future of HR analytics. Everyone says is prediction model or predictive analysis. So we have one prediction model here with us. So
Mr. Rajat sir, could you please explain about predictive analysis? सो बेसिकली प्रिडिक्शन, जैसा कि मैंने बोला कि अब जो नए HR एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं, ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एब्सेंटिज्म है, जैसे मान लीजिए एब्सेंटिज्म है, तो हिस्टोरिकल अटेंडेंस क्या शो करता है कि यार ये छुट्टी बहुत ज्यादा ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी में इशू आ रहा है क्या। तो ऐसे मॉडल्स होते हैं कि जो पिछले 5 महीने 6 महीने साल भर का डेटा लेके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे और कितनी छुट्टी लेगा। सो दीज आर प्रिडिक्टिव मॉडल्स, या ये कंपनी छोड़ जाएगा या ये एट्रिशन का पार्ट बन जाएगा। सो दीज थिंग्स कैन हेल्प यू इन प्लानिंग द विंडो की यार आपको अब क्या डिसीजन लेना है, आपको अब क्या एक्शन लेना है, आपको अब क्या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ में किस तरह से डील करना है। सो दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू। देर आर लॉट ऑफ एंगल्स की कब छुट्टी आ रही है, कैसा रोल है, कितना कितना एम्प्लॉय। एग्जाम्पल एब्सेंटिज्म का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा जो इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे आता है वो एब्सेंटिज्म का ही आता है कि And एम्प्लॉय this के is the model for absenteeism, to measure ओके। absenteeism. यू के यस। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सृष्टि ने जो मॉडल दिया है कि एब्सेंटिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वीकडे पे, वो कितना सैटरडेज पे एब्सेंटिज्म सबसे ज्यादा है। सो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी मैन पावर वर्क फोर्स का कि वो कब क्या होने वाला है, सैलरी वाले दिन कितने लोग छुट्टी लेने वाले हैं, उस वीक में कितने लेने वाले हैं। कई बार होता है यार सैलरी आ गई, अब अगले दिन घूमने जाएंगे, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू कैन प्रिडिक्ट ऑल, यू कैन डू ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोडक्शंस आप कर सकते हो। इवन ये सिर्फ एब्सेंटिज्म तक ही नहीं है। आप अगर आपके पास में कोई नए प्रोजेक्ट्स, अगर टीम के पास में कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप अपनी मैन पावर प्लानिंग, MPP, मैन पावर प्लानिंग, वर्क फोर्स प्लानिंग, ये भी कर सकते हो कि हमें इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर इसको 2 साल में हमें कंप्लीट करना है तो हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कि क्या किस किस प्रोफाइल के लोगों की जरूरत पड़ेगी। बट अगेन द थिंग इज दैट कि आपके पास में जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा फ्लो कर रहा है वो सही होना चाहिए प्रिडिक्शन करने के लिए। Yes. क्योंकि प्रिडिक्शन So इज टोटली predictive, बेस्ड, यस, प्रिडिक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, व्हाट इज हैपेंड yes. इन द ऑर्गेनाइजेशन। So predictive analysis is the future of HR analytics, we can say, right? HR एब्सोल्युटली। analytics or analytics. It is. We can, okay, we can't rely on prediction models, but we can make some better decisions from that. करेक्ट। Yeah. So moving forward, just a minute. So is my screen visible to you? Rajat sir, is my screen visible to you? Yes, absolutely, it is visible. Okay. So we have discussed many things today. So could you please tell us what are the key takeaways, like about challenges, about solution, about predictive analysis? So, people management, human resource management is a continuous process, which is, I mean, the number one key takeaway uh, across the employee life cycle. It is not an one-time annual event like जैसे कि एक साल में एक बार अप्रेजल हो रहा है कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, बट इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ये कंटिन्यूसली फोकस करने वाला एरिया है। HR कैन बिल्ड द फ्रेमवर्क, बट जो टीम लीड्स हैं, मैनेजर्स हैं और जो बिजनेस लीडर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस चीज को एग्जीक्यूट करने में। सेकंड, थर्ड, वर्क फोर्स के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सेटिस्फैक्शन लेवल जितना ज्यादा रहेगा, स्टे इंटरव्यूज जितने ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। एनालिटिक्स, HR analytics will be very much helpful for the organizations to take better decisions, good decisions, cost saving decisions for their organization, for their business to grow. And finally, I will say कि AI can help you out, but it cannot replace. So these are the key takeaways from the today's
session, and every organization should have rather a very good quality of HRMS software with HR analyticals. These kind of dashboards or predictive powers they should have. So we can say, like, as we are seeing on the screen, through data, we can make smarter decisions. We can like solve major issues or challenges that occurs in any organization. It will help in reducing the cost or the employee satisfaction. It is going to help in every aspect of the employee or the organization, Absolutely, right? Yeah. absolutely. So Okay. it's all 21st century. It's all about data. Yes. Okay. So I already said earlier, when we were starting the webinar, that we are going to have one quiz. So it's time for that. How much did we learn today? So अभी आप सबकी screens पे questions आएंगे and you have to answer all the questions. And जो भी winner होगा, that person is going to win the 7-day free trial of HR Analytics module by Time Labs. इतना जितना हमने डिस्कस किया अभी तक HR एनालिटिक्स के बारे में, डेटा के बारे में, ये जो HR एनालिटिक्स मॉड्यूल होगा ये आपको प्रोवाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा आपके डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में लाने के लिए. सो we are going to have the quiz right in a minute. So I think everyone is now able to see the questions. The questions are displayed on the screen. So I want everyone to actively participate in this quiz because it will actually help you to know about how you can use your own data to make smarter workforce decision. Okay, so question number 1 is, in the case study we studied, what was the primary reason recruitment became a business challenge? So जिसने भी एकदम ध्यान से सुना होगा, सेशन को अटेंड किया होगा, they would be going to answer this very easily. So please drop your answers. Okay. So the next question. Okay, so second question is, how did the recruitment challenge directly impact the learning and development function here? Okay, so we are getting many responses here. It's really great to see so many enthusiastic participants and all have like listened so carefully to the discussion. So very grateful to each one of you.
Okay. Okay, so we are not going to declare the winner of this quiz right now. For that, you need to visit the HR Samvads LinkedIn page tomorrow morning or Monday morning. There you will get to know who is going to win this quiz or who is going to get the chance to try the HR Analytics module of Time Labs. Okay, so the next question we have. Okay, so the next question is, what was one of the key challenges organizations commonly face in performance management? So, what was the key challenge that the organization faces in performance management? Good to see a lot of people are answering, huh? Yeah, a In the lot of people quiz. are Yes, answering. a lot of people are answering. I'm just reading the answers, what they are saying. There are many who are like answering in chat box too. Yes, 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 yes. Yeah, compensation, retention, compensation. Okay, so one attendee said one key challenge is ensuring fair, objective, and consistent performance evaluations across employees and their managers. Absolutely. High compensation as well, compensation and benefits, lack of interest to work of employees. Okay. Okay, so our next question would be the fourth question for our quiz is, why did the company decide to adopt an HR analytics driven approach? So, why do companies like adopt HR analytics? They got structured data, okay, process efficiency to manage growth, to identify workforce challenges and make data driven decisions. We are getting so many responses. Nice effort by the viewers, audiences. Yeah, okay. So, our last question for today's quiz would be, which statement best describes the role of AI in HR decision making? So, this is the last question for everyone. Which statement best describes the role of AI in HR decision making? Okay, a helping hand. Okay, so I can see like जितने भी हमारे audience हैं, they have heard the session very
attentively. Yes, attentively Yeah. and carefully. AI should support HR decisions making by analyzing data, identifying patterns, and providing insights, while the final decision remains with HR professionals. That's so true. AI is only help. AI is there to only help HR. Okay, a true assistant. Good answer. Good answer. Yeah, a true assistant. CV filtering. It's No, only for no, you cannot communication. do CV filtering with the AI. It is unethical. You are sending data of another candidate on the AI, which is not good. AI ethics, It's data breaching. remember. Yeah. Good. You Only cannot supporting use AI activities. for data purposes. Like you cannot upload your employees' data there. Always avoid uploading data because there is a privacy concern for the candidates, employees. You cannot upload their CVs or personal data on the AI, and it is a very dangerous thing for them. You can see these days how much government and people are concerned about the security, cyber frauds are going on. You cannot just upload the individual's data on the AI systems. It is totally wrong practice. Because everyone uses AI like हर काम के लिए AI को यूज कर लेते हैं हर एक चीज के लिए. It's only for your helping purpose. It's only your companion. Okay, so with that, Mr. Rajat, I want you to like explain about all the HR analytics tools because we have like did completely we have understood everything about recruitment, L&D, compensation, performance. So like can you please tell about Excel, Power BI, Python? These are the most HR analytics tools used now. Okay. So, I mean, as you can see on the screen, I mean, you have mentioned correctly that these tools are available in the market, which can help you out to do analytical work. Like Excel is available. I mean, Power BI is there. It's a paid version from Microsoft. Python is there, open source, but that needs coding skills to make the analytical dashboards. Then AI tools, which we are talking about, and which is, I'm saying, a dangerous thing to upload the personal data on those dashboards or for making those dashboards on the AI, generative AI platforms like Cloud and GPT and Gemini. It's not the right practice. SQL, yes, you can take help of SQL. HRMS system, Tableau is one of the again paid versions from with the help of that you can generate analytical dashboards or any third party website which is generating free of cost dashboards. Again, you are uploading the data of the organization. Again, that is not a right practice. So this second last point is that having an HRMS systems is the best practice to adopt for an organization, whether it is of a small size in a nature or a medium size or a large size. As per the to get the correct HR ecosystem, you need to have a good HRMS system, and we have an example of Time Labs software which can insert your data from the day one, day zero helping hand of HR organizations. I mean, HR senior HR people, they can start using this as a zero day data inserting tool. Then it can keep your data, store your data, retrieve the data. You can create a lot of reports. You can use visualizations, which we have shown you. You can make analytical things out of that. I mean, you can do a lot of business analytics and intelligence from this software. I mean, there is a total HR ecosystems which can be provided by HRMS systems. So, oh yes, people can use all these tools, but a good HRMS system will do all those things which we have shown in the earlier, in the last 1.5 hour, whatever we are doing, it's a result of a good HRMS systems, just like time lapse. Okay. So, sir, let's take some audience question. So, अब हम Surely. 5 मिनट का Q&A करेंगे
So we have one interesting question, like how an organization should handle Gen Z employees' expectations, thoughts, and workplace challenges. AI उसमें कुछ help कर सकता है क्या? One attendee asked. सी अगेन आई एम सेइंग कि जेन जी भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं और पहले भी चैलेंजेस रहे होंगे डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस में मैन पावर को लेके। ये केवल जेन जी का ब्रेन नहीं है, इट्स नॉट ओनली जेन जी ब्रेन विच इज नॉट कैन नॉट बी टैकल्ड, इट कैन बी टैकल्ड। सो अगेन नाउ योर सिस्टम, सो जो लोग ये अटेंड कर रहे हैं सेशन, अगर उनमें से कोई एमबीए स्टूडेंट्स होंगे या कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट्स होंगे या एमबीए एचआर होंगे, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि परसेप्शन, एटीट्यूड, इस तरह के जो टॉपिक्स आते हैं। तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड देयर आर साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल। आप साइकोमेट्रिक टेस्ट डिजाइन कर सकते हो और जो एआई की मदद से यू कैन डिजाइन दोज विद द हेल्प ऑफ एआई एज वेल। और आप बिना एआई के भी देयर आर मेथड्स गिवन टू यू, तो आप एक किसी पर्सन की साइकोलॉजी समझ सकते हो कि ये जेंजीज अगर हैं तो ये किस तरह की साइकोलॉजी के हैं। तो यू कैन यूज साइकोमेट्रिक टूल्स। HRMS softwares can also make these kind of psychometric tools inside them once the data is feeded. So you need to define it. So हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अप्रोच कैसी यूज हो रही है दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। Yes, AI Yeah. can help it. So there's one question. Even though senior employees have more work experience and possess valuable knowledge of AI, they are sometimes being replaced by younger employees without being given an opportunity to explore, learn, and adapt to new technologies. What do you want to say about it? See, experience is one thing which I mean cannot be replaced by anything, Yeah, because that's true. एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने वो सब चीजें अपने पास्ट करियर हिस्ट्री में ऐसे इंस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस दे हैव सीन which might not be seen by the young people. Yes, they might have a data power, but जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसीलिए हम जब भी बोलते हैं कि कोई भी सीनियर, जब आपकी टीम, आप किसी सीनियर की टीम में होते हैं और जिसकी लर्निंग बहुत हाई होती है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत ज्यादा हाई रेटिंग दी जाती है हमेशा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस से सीखता है दूसरे के, वो बहुत जल्दी सीखता है। खुद ठोकर खा के सीखोगे और एक आपको सामने वाला अलर्ट कर रहा है कि हाउ टू डू दिस थिंग्स, तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे कितने भी टूल्स आपके पास हो। क्योंकि वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस दे हैव सीन। सो यंग पीपल हैव द पावर ऑफ डेटा, बट द एक्सपीरियंसेस कम विद टाइम ओनली। We need both experienced ones too Absolutely. and the new ones too. Absolutely. Yeah. We need both. Both type of energies are required. One statement came for Gen Z employees, we need Gen Z HR leaders too. Okay. Okay, jokes apart, there's one more question. So many organizations do not fully comply with government regulations and statutory recruitment requirements. These can create concerns around job security, PF, ESIC, salary benefits, and other employee rights. Since action often happens only for a complaint or inspection, employees may feel uncertain and lose trust in the organization, sometimes leading them to resign. So, should employees have to ask and fight for their basic rights, or should they need to focus on their career? See, employee must cater their problems. I mean, they should rather, I would say, they Yeah. should intimate those problems to the HR, and there are solutions to these kind of problems. I mean, at the time of joining, they can clear all these doubts. Rather, I mean, I don't know about the organizations. Usually, majority of organizations are compliant with government norms, and they are following the all statutory compliances. Majority of organizations are into this practice only, and if someone is left due to some reason, so they can, I mean, intimate their HR team or the hiring team about all these issues at the time of hiring only. They can discuss all these things. Once you join the organization and you are feeling all these things that something is missing
out on your compliances part, then you can intimate the team and they will follow up. If the organization is fully compliant, then definitely all the rights will be transferred to the employee, definitely. Okay. So with that, we are to the end. So thank you everyone for being such an engaged and enthusiastic audience. Also, जो भी आपके अभी भी questions है, you can put them in the chat box. We will answer all your questions. We'll answer your questions through emails. We'll answer it. So you can put your questions, but it's time to conclude today's session. So thank you so much, Rajat sir, for Thank you. explaining so Thank you. well. Thank you so much Thank to our you. audience. Also, जो भी हमारे विनर होंगे, it's going to be announced on HR Samvad's LinkedIn page. So just visit that page. Also, जो भी prompts, जो भी dashboards हमने अभी इसमें देखे हैं in the session, आपको सारे के सारे जो डैशबोर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. एक रिसोर्सेबल लिंक मिलेगी, डाउनलोडेबल लिंक मिलेगी, उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाएंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे. So we so thank you so much everyone. Okay. So for more updates, stay tuned with HR Samvad on LinkedIn. Thank you everyone and we'll see you on our next webinar.